Chapter 6 My Childhood. Before you read, APK Abdul Kalam, whose project in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. APJ Abdul Kalam, जिसके प्रोजेक्ट्स ने स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडिया में 21st सेंचुरी में गाइड किया, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट 2002 में बने। उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में वह अपने बचपन के बारे में बताते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashia Ma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. मैं रामेश्वरम के आइलैंड टाउन, जिसको फॉर्मर मद्रास स्टेट कहते हैं, कि मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन के पास ना तो ज़्यादा एजुकेशन थी, ना ज़्यादा वेल्थ। इसके बावजूद उनके पास बहुत ज्ञान और उदारता थी। मेरी माँ आशिया माँ उनकी आइडियल मददगार थीं। मुझे संख्या तो याद नहीं, पर हमारे घर पे रोज़ घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले खाना खाते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was very secure childhood, both materially and emotionally. मैं अपने वही पूर्वजों के घर में रहता था जो 19वीं सदी के बीच में बनवाया गया था। यह एक पक्का मकान था जो लाइमस्टोन और ईंटों से मॉस्क स्ट्रीट में रामेश्वरम में बना हुआ था। मेरे सख्त पिताजी ऐशो आराम की फालतू चीज़ों को लाने से बचते थे, लेकिन ज़रूरत की सारी सामान, चाहे वो खाना हो या दवाइयाँ या कपड़े, सभी उपलब्ध रहते थे। मेरा मानना है कि मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था, सामान्य रूप से भी और भावुक रूप से भी। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me that princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces,
and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in form of suspension of the train halt at Rameswaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and, as if naturally, I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई जब मैं 8 साल का था। कुछ कारणों से मुझे यह कभी समझ में नहीं आया कि इमली के बीजों की डिमांड मार्केट में इतनी क्यों बढ़ गई है। मैं उन्हें इकट्ठा करके प्रोविजनल शॉप मॉस्क स्ट्रीट पे बेच आता। एक दिन इकट्ठा करने से मेरे को एक आना मिलता। मेरा भाई जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाता रहता, जो कि मैं बाद में हेडलाइंस में ढूंढने की कोशिश करता। हमारा एरिया इस सब चीज़ों से काफ़ी दूर था, लेकिन जल्द ही इंडिया को भी एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा और एक इमरजेंसी लागू हो गई। पहला असर तब दिखा जब ट्रेन ने रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना बंद कर दिया। अब अखबारों को इकट्ठा करके चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम रोड पे फेंकने का काम था। इसके कारण मेरे भाई शमसुद्दीन, जो कि अखबार बांटता था, को इसमें एक हाथ बटाने का काम सौंपा गया और मैंने उसकी सहायता करी। शमसुद्दीन ने मेरे को मेरी पहली कमाई करने में मदद करी। आज 50 साल बाद भी उस पहली तनख्वाह की खुशी मेरे को महसूस होती है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood: Ramanatha Shastri, Arvindan, और शिव प्रकाशन. All these boys were from orthodox Hindu Brahman families. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanand Shastri was the son of Prakashi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. Arivandan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. हर बच्चा अपने माँ बाप से कुछ विशेषताएं लेके एक समाज में कुछ तरीकों से बड़ा होता है। मैंने अपने पिताजी से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिट किया था और अपनी माँ से फेथ इन गुडनेस और डीप काइंडनेस। बचपन में मेरे 3 अच्छे दोस्त थे: रामानाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। यह सभी लड़के कट्टर हिंदू फैमिली से आए हुए थे। छोटे बच्चों के रूप में हमें कभी आपस में कुछ अंतर महसूस नहीं हुआ। रामानाथ शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो कि रामेश्वरम मंदिर के सबसे ऊंचे पुजारी थे। बाद में उसी ने उनका पुजारी का पद ग्रहण करा।
अरविंदन अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आगे बढ़ा और शिव प्रकाशन साउदर्न रेलवेज में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामायण कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. वार्षिक श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी के लिए हमारे घर वाले एक ऐसी नाव का इंतज़ाम करते जिस पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिस पे भगवान की मूर्ति रखकर मैरिज साइट तक ले जाया जाता था। यह मैरिज साइट तालाब के बीचों बीच में राम तीर्थ पर थी, जो हमारे घर के पास था। मेरी माँ और दादी माँ रात में सोने से पहले मुझे रामायण के कई किस्से सुनाया करती थी। वन डे when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramadhan Shastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanand Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में था, हमारे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एक नए शिक्षक का आना हुआ। मैं एक टोपी पहनता था जिससे यह पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ, और मैं रामानाथ शास्त्री के बगल में बैठता था, जो कि वह पवित्र धागा पहनता था। नए टीचर को यह बात नहीं पची कि हिंदू प्रीस्ट का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। इसी कारण से मुझे कक्षा में पीछे बैठने को कहा गया। मुझे बहुत बुरा लगा, और यही बुरा रामानंद शास्त्री को भी लगा। शास्त्री की वह रोती हुई शक्ल मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not separate the position of social inequality and communal tolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. स्कूल के बाद हमने घर जाकर यह घटना अपने माँ बाप को बताई। लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलवाया और हमारे सामने ही बच्चों के मन में सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल टॉलरेंस भरने के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने उस टीचर से या तो माफ़ी मांगने के लिए कहा, या तो वह स्कूल और आइलैंड छोड़ने के लिए कहा। टीचर को इस बात से बुरा लगा, और लक्ष्मण शास्त्री का यह बिलीव देखकर टीचर में बदलाव आया। ऑन द होल, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन of different social groups. However, my science teacher, Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahman,
with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. मेरे विज्ञान के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे जिनकी एक बहुत ही कंजर्वेटिव वाइफ थी। वह समाज के इन बैरियर्स को तोड़ने की तरफ लगे हुए थे जिससे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग एक साथ साथ में रह सकें। वह मेरे साथ कई समय गुजारते थे और वह मुझसे कहते थे कि मैं इतना डेवलप हूँ कि मैं बड़े लोगों की जो बड़े सिटी में रहते हैं उनकी बराबरी कर सकूं। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiv Subramanyam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. एक बार शिव सुब्रमण्यम अय्यर टीचर ने मुझे घर खाने पे बुलाया। उनकी वाइफ इस बात से बहुत डरी हुई थी कि एक मुस्लिम लड़का उनके साफ और स्वच्छ किचन में खाना खाएगा। उन्होंने मुझे खाना परसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम स्वामी इस बात पे ना अपनी वाइफ से गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना परोसा और मेरे बगल में बैठकर अपना खाना खाया। उनकी पत्नी हमें किचन के दरवाजे के पीछे से देख रही थी। मैंने सोचा कि क्या उन्हें मेरे और शिव सुब्रमण्यम अय्यर सर के खाने में कुछ अंतर दिखा। मैं पानी कुछ अलग तरीके से पी रहा था या खाना खाने के बाद फ्लोर कुछ अलग तरीके से साफ कर रहा था। जब मैं उनके घर से निकल रहा था तब शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे घर पे फिर से खाने के लिए बुलाया अगले हफ्ते। मेरा हेजिटेशन देख के उन्होंने मुझे दुखी ना होने के लिए कहा और यह समझाया कि अगर हम एक बार सिस्टम को बदलने की सोच लेते हैं तो ऐसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब मैं अगली बार उनके घर पहुंचा तब उनकी पत्नी ने स्वयं मुझे अपने हाथों से खाना परोसा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanthapuram. उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और भारत को आज़ादी मिली। भारतीय अब अपना भविष्य खुद बनाएंगे। गांधी जी ने
डिक्लेयर कर दिया। पूरा कंट्री एक आशावादी भावना से भर गया। अब मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम के बाहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रामांथापुरम में जाके पढ़ने की इच्छा जताई। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. उन्होंने मुझे इस प्रकार यह बात बताई जैसे कि वह इसे जोर से सोच रहे हों। अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बड़ा होने के लिए दूर तो जाना ही पड़ेगा। उन्होंने खलील गिब्रान का कोट मेरी माँ को सुनाते हुए बोला कि अब तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। वे अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं। वह तुम्हारे द्वारा आए गए हैं, बट तुमसे नहीं आए हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, बट उन्हें अपने थॉट्स नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास अपने खुद के थॉट्स या विचार हैं। Answer these questions in 1 or 2 sentences each. Where was अब्दुल कलाम's house? अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था? Answer. अब्दुल कलाम's house was on the Mosque Street in रामेश्वरम. अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में था। Question 2. What do you think Dinamani is the name of? Give a reason for your answer. आपको क्या लगता है कि दिनामानी किस चीज़ का नाम है? अपने उत्तर के लिए कोई कारण बताइए। Answer. I think Dinamani is the name of a newspaper because Kalam says that when his brother-in-law would tell his stories of the war, he would later try to trace it in the headlines of Dinamani. This implies that Dinamani would have been a newspaper. मुझे लगता है कि दिनामानी एक अखबार है, क्योंकि जब कलाम ने यह बोला था कि उसका भाई उसको वॉर की कहानियाँ सुनाते थे, तब वह ये बताते थे कि वह दिनामानी की हेडलाइंस में उन बातों को ढूंढने की कोशिश करते थे। इससे यह पता लगता है कि दिनामानी एक अखबार रहा होगा। क्वेश्चन 3. Who were अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स? What did they later become? अब्दुल कलाम के 3 स्कूल के दोस्त कौन थे? वे बाद में क्या बने? उत्तर. रामानंद शास्त्री, अरविंदन and शिव प्रकाशन were Abdul Kalam's school friends. Ramanand Shastri took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Shiv Prakashan became the catering contractor for the Southern Railways. रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन अब्दुल कलाम के 3 दोस्त थे। रामानंद शास्त्री ने अपने पिताजी से रामेश्वरम टेम्पल का पुजारी का पद प्राप्त किया। अरविंदन ने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आगे बढ़ाया और शिव प्रकाशन साउदर्न रेलवेज में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना। Question 4. How did Abdul Kalam earn his first wages? अब्दुल कलाम को अपनी पहली तनख्वाह कैसे मिली? Answer. Abdul Kalam earned his first wages
by catching bundles of newspapers thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Danduskodi and distributing them. अब्दुल कलाम को अपनी पहली तनख्वाह रामेश्वरम रोड से जाने वाली रामेश्वरम और धंधुकौड़ी के बीच चल रही ट्रेन से फेंके गए अखबारों को कैच करके और बेचने से मिली। क्वेश्चन 5. हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट? इन व्हाट वे? क्या उन्होंने इससे पहले पैसा कमाया था? किस तरीके से? आंसर: यस, he had earned money before that too. He used to collect tamarind seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would let him earn 1 आना। हाँ, उन्होंने इससे पहले भी पैसा कमाया था। वह टैमरिंड के बीज ले जाते थे और उन्हें प्रोविजन शॉप पर बेच देते थे। इससे उनको 1 आने के आसपास मिल जाता था। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन 1. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब्ड फर्स्ट हिज फादर, सेकंड हिज मदर, थर्ड हिमसेल्फ? लेखक ने अपने माता पिता और खुद का वर्णन किस प्रकार दिया? उत्तर: पहला, अपने पिता का। द ऑथर डिस्क्राइब्ड हिज फादर एज ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड. His father used to avoid inessential comforts and luxuries. The author tells that his father never had a formal education or much wealth, but he possessed great wisdom and was very generous. लेखक ने अपने पिता को बहुत ईमानदार और सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बताया है। वह फालतू चीज़ों में और कंफर्ट्स में पैसे नहीं लगाते थे। लेखक ने बताया कि उनके पिता को कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली और ना उनके पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन उनके पास बहुत ज्ञान था और वे बहुत दयालु थे। सेकंड, मदर. द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज मदर एज बीइंग एन आइडियल हेल्पमेट टू हिज फादर. She used to feed a lot of outsiders along with her family members. लेखक ने अपनी माता को एक आइडियल हेल्पमेट बताया। वे कई लोगों को खाना खिलाती थीं, चाहे वो घर के हों या चाहे वो बाहर के। थर्ड, हिमसेल्फ. द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय with undistinguished looks, born too tall and handsome parents. लेखक ने अपने आप को एक छोटे कद का बच्चा बताया जो अपने माँ बाप जैसा ही दिखता है और वह अपने लंबे और खूबसूरत माँ बाप को पैदा हुआ है। क्वेश्चन 2. What characteristics does he say he inherited from his parents? अब्दुल कलाम ने कौन सी विशेषताएं अपने माँ बाप से ग्रहण की? आंसर: ही सेज दैट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर. अब्दुल कलाम ने बताया कि उन्होंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने पिताजी से सीखा और अच्छाई में भरोसा और दयालुता अपनी माँ से सीखा। पोयम नो मैन आर फॉरेन. स्टांजा 1. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brother walk upon, is earth like this, in which we all shall lie. इन वाक्यों से कवि यह कहना चाहते हैं
कि कोई इंसान अजीब नहीं होता और ना ही कोई देश बाहर का होता। इसका मतलब कि कभी अपनी दुनिया से बॉर्डर्स को हटाने की बात कह रहे हैं जो अलग अलग देशों ने खड़े कर रखे हैं। इससे कोई भी देश बाहर का नहीं होगा। हमें हर कंट्री, हर देश अपने ही देश जैसा लगेगा जब कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे। सब लोग कहीं भी आने जाने के लिए फ्री होंगे। कवि कहना चाहता है कि ये अर्थ एक ही है और इस पे रह रहे सारे इंसान एक ही इंसानी रेस को बिलोंग करते हैं। कवि कहते हैं कि हर कपड़ा जो हम पहनते हैं उसके अंदर इंसानी शरीर एक जैसा ही होता है। भगवान ने हम सबको एक ही तरीके से बनाया है। हम एक ही तरीके से सांस लेते हैं। हमारे सारे सैनिक हमारे भाई की तरह हैं। हम इस दुनिया पर चलते हैं और मृत्यु के बाद इसी दुनिया में दफना दिए जाते हैं। स्टांजा 2 They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. यहाँ कवि उन लोगों की बात कर रहा है जो दूसरे देशों में रहते हैं। हम उन्हें बाहर का समझते हैं और उनके साथ लड़ाई करते हैं या उनसे भेदभाव करते हैं, लेकिन इस प्रकृति ने सबको एक ही जैसा बनाया है और एक ही जैसा सामान भी उपलब्ध कराया है। हमारे और उनमें कोई अंतर नहीं है। सबको वही धूप, वही हवा और वही पानी बराबर हिस्सों में मिलता है। इसका मतलब यह है कि भगवान ने लोगों के बीच में कंट्रीज या देशों का अंतर नहीं बनाया है। हम सब खाने के लिए खेती करते हैं और एक आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जब लड़ाइयाँ होती हैं तब कई सैनिक और कई लोग भूखे रहते हैं और कई बार भूख से मर भी जाते हैं। सभी इंसान एक जैसे ही हैं और सब अपने खाने के लिए मेहनत करते हैं। कवि यह सब इसीलिए बता रहा है जिससे पाठक यह समझ सके कि इंसानों में कोई अंतर नहीं होता है। सब इंसान एक जैसे ही होते हैं। स्टांजा 3 Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. In every land is a common life that all can recognize and understand. कवि बताता है कि ये सभी लोग जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं या जो दूसरे देशों से आते हैं, उन सबको भी भगवान ने वही शक्ल दी है। उनके पास भी हमारी जैसी आँखें हैं और वे भी हम जैसे ही सोते हैं। हर देश में एक कॉमन चीज़ होती है, वो है ज़िंदगी, लाइफ। लाइफ मीन्स एवरीथिंग दैट इज़ लिविंग। और अगर हम इन लिविंग चीज़ों को पहचान जाते हैं तो फिर हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और लोगों के बीच या देशों के बीच लड़ाइयाँ नहीं होंगी। Stanza 4 Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. पोयट कहते हैं कि हमें याद करना चाहिए कि जब भी कोई हमें यह कहता है कि दूसरे देश से आया व्यक्ति हमारा दुश्मन है या हमें उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करना चाहिए, तो जब भी हम किसी को
अपना दुश्मन मानते हैं तो हम खुद को चीट करते हैं और वी कंडेम आवरसेल्फ। पोएट कहते हैं कि हमको ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। हमें उन लोगों को दुश्मन नहीं मानना चाहिए। एक वॉर के टाइम पर नुकसान दोनों साइड को होता है, इसीलिए पोएट कहते हैं कि वॉर किसी के फेवर में नहीं है। पोएट का मानना है कि अगर हम कोई शस्त्र उठाएं तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जो कि स्टैंजा 5 में बताई गई है। स्टैंजा 5 इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस of the air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country strange. हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी हम शस्त्र उठाएं तो उससे हमेशा हमारी धरती माता ही गंदी होती हैं, क्योंकि शस्त्रों से सिर्फ इंसान को मारने का काम किया जाता है और उनकी बॉडी हमारी धरती माता में दफना दी जाती है और उनको गंदा किया जाता है। जब भी लड़ाई होती है इसके कारण बहुत खून खराबा और मृत्यु होती हैं। यही डेड बॉडीज़ अर्थ पे जमा हो जाती हैं और इसे गंदा बना देती हैं। इसी सब के कारण जो कवि हैं वो हमें यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कभी वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए। फाइनली पोएट यह पोएम एंड करते हैं यह लिखकर कि कोई इंसान दूसरे देश का नहीं है और कोई कंट्री अजीब नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट? हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर सेम? बीनीथ द यूनिफॉर्म्स बोलकर पोएट किन यूनिफॉर्म्स की बात कर रहा है? पोएट यह कैसे बताता है कि दुनिया में रह रहे सभी इंसान एक जैसे हैं? आंसर, द यूनिफॉर्म refers to those worn by soldiers belonging to different countries who indulge in wars and fight. The poet says that all the people are in the same in the following manners. First, we belong to one human race. Second, we walk on the same earth. Third, upon death, we will lie in our graves in the same earth. Fourth, during peace, we all enjoy the bounties of nature. Fifth, during war and in the winter season, we all starve due to shortage of food. Sixth, we all do a lot of labor with our hands. Or seventh, we have eyes which function in the same way. यूनिफॉर्म से कवि उन सोल्जर्स की पहने हुए कपड़ों की बात कर रहे हैं जो अलग अलग देशों के लिए लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। पोएट बोलते हैं कि ये सब लोग इन निम्नलिखित प्रकारों से एक जैसे हैं। पहला, हम सभी इंसान हैं। दूसरा, हम एक ही धरती माता पे चलते हैं। तीसरा, मरने के बाद हमारी लाशों को भी इसी धरती में दफना दिया जाता है। चौथा, जब शांति रहती है तब हम नेचर को एंजॉय करते हैं। पांचवा, जब वॉर होती है या ठंडक का सीज़न आता है तब हम सभी खाने की शॉर्टेज से भूखे रहते हैं। छठवा, हम बहुत मेहनत करते हैं। सातवां, और हम सब की आँखें एक ही तरीके से काम करती हैं। क्वेश्चन 2, इन स्टांजा 1 फाइंड 5 ways in which we all are alike. Answer, the 5 words in which indicate that we all are alike are: first, we walk; second, we breathe; third, we have eyes;
4th, we work with our hands. 5th, we enjoy the bounties of nature. स्टांजा 1 में से ऐसे 5 शब्द छांटिए जो ये बताते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। उत्तर, जो वो 5 वर्ड्स इस प्रकार हैं। पहला, हम सब चलते हैं। दूसरा, हम सब सांस लेते हैं। तीसरा, हम सब के पास आँखें हैं। चौथा, हम सब अपने हाथों से काम करते हैं। पांचवा, हम सब नेचर को एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? पिक आउट द वर्ड्स। स्टांजा 2 में आप कितने एक जैसे फीचर फाइंड कर सकते हैं, वे शब्द बताइए। आंसर, देयर आर 3 कॉमन फीचर्स इन स्टांजा 2. They are as follows. First, we enjoy the bounties of nature and eat good food during peace. Second, we starve during war and in winter season. Third, we have similar hands which we use for doing labor. उत्तर, स्टांजा 2 में 2 एक जैसे फीचर्स हैं। They are as follows. पहला, हम नेचर को एंजॉय करते हैं और शांति के समय अच्छा खाना खाते हैं। दूसरा, हम लड़ाई के समय भूखे रहते हैं और सर्दियों के समय भी। तीसरा, हमारे वही हाथ हैं जिनसे हम सभी काम करते हैं। क्वेश्चन 4, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? Whenever we are told to hate our brothers में ऐसा कब होता है जब हम अपने भाइयों से नफ़रत करने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? हमको ये सब कौन बताता है? क्या हमें उस समय उनसे नफ़रत करनी चाहिए? पोएट का क्या मानना है? Answer, the leader of any country tell the masses to hate the people of another country. They say so to fulfill their personal gains and benefits. The poet says that we should not follow them because when we hate our brothers, we hate and belittle ourselves. When we indulge in war, we pollute and render the mother earth impure by laying dead bodies on it. उत्तर, कई देशों के लीडर्स उनकी जनता को एक दूसरे को हेट करने को बताते हैं। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं जिससे वे अपने पर्सनल गेन्स और बेनिफिट्स पूरे कर सकें। पोएट का मानना है कि हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दूसरे देश के भाइयों से नफ़रत करेंगे तो हम अपने आप से नफ़रत करते हैं। जब हम लड़ाई में शामिल होते हैं, हम अपनी पृथ्वी माता को गंदा करते हैं उन पे डेड बॉडीज़ डाल के।